Okay, good morning to all of you. So I will wait for 2 to 3 minutes. From 9:33, I will start the class. Okay. Is the screen is visible to everyone? Is the screen is visible to everyone? Okay. From 9:33, I will start the class. Okay. So I'm going to start the session. Hope the screen is visible to everyone. If not, kindly message me through the WhatsApp. Okay. Okay. Fine. So today I'll start the lecture number 3 of day 3. So today I'll start. In previous classes you have studied about wireless communication. That is, what do you mean by wireless communication and how the wireless communication is different from wired communication and different generations of mobile communication like 1G, 2G, 3G, 4G, and very recently which is going to be launched very soon in India or in overall more telecom system, that is 5G technology, that is fifth generation technology, and how the generation wise the technology will improve. Technology was improved. That a brief idea I was given in the previous classes. So today I will discuss about the cellular concept or system design fundamentals in mobile communication. So the topic is the cellular concept under this system fundamental system design. Okay, so since the topic is fundamental system design, that means just a minute. Okay. Since the topic is fundamental system design, that means the basic design which is required for mobile communication, we will see. So before that, very first thing we have to know about the concept through which the information will be carried out. That is nothing but the spectrum. Spectrum. ठीक है, स्पेक्ट्रम के बारे में हम लोग सभी थोड़ा बहुत जानते हैं. कैन एनीबॉडी गिव सम आइडिया अबाउट स्पेक्ट्रम? व्हाट डू यू मीन बाय स्पेक्ट्रम? व्हाट डू यू मीन बाय स्पेक्ट्रम? कैन एनीबॉडी गिव सम आइडिया अबाउट द नेम स्पेक्ट्रम?
What do you mean by spectrum? Anyone from your end? Anyone, can you give some idea about spectrum, or what do you mean by spectrum, or what is the main meaning of spectrum, the term spectrum? ये होता क्या है? किसी को कुछ आइडिया? Yes or no? सर जैसे कि कलर स्पेक्ट्रम होता है, फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम होता है, मतलब ये स्पेक्ट्रम होता क्या है? ये तो कलर स्पेक्ट्रम, फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम, these are the type of spectrum. ओके फाइन. सर अरेंजमेंट होता है. क्या होता है? अरेंजमेंट सर. Arrangement somehow right, but actually spectrum is nothing but the very known terminology, that is bandwidth. That is nothing but the spectrum. ठीक है. So now your question may be arise that sir bandwidth को spectrum कैसे कह सकते हैं? Suppose spectrum means क्या है? Color spectrum, frequency spectrum means number of bandwidths. Suppose एक चैनल है, ठीक है, यहां से यहां तक एक चैनल है, वहां पे वेरियस बैंडविड्थ है. सपोज ये एक बैंडविड्थ है, ये दूसरा एक बैंडविड्थ है, ये थर्ड बैंडविड्थ है, ठीक है, एंड दिस इज द फोर्थ बैंडविड्थ. सो देखो दूर से इसको देख के लग रहा है ये एक स्पेक्ट्रम है. सो स्पेक्ट्रम इज नथिंग बट द कलेक्शन ऑफ बैंड्स, दैट इज स्पेक्ट्रम. लाइट कलर स्पेक्ट्रम, ठीक है, कलेक्शन ऑफ कलर्स इन द फॉर्म ऑफ बैंड, ठीक है. सो दैट इज स्पेक्ट्रम. So in case of cellular concept, we also deal with spectrum of limited allocation of the particular frequency. Suppose मैं एयरटेल यूज कर रहा हूँ, किसी के पास जियो है, मैं जियो यूज कर रहा हूँ या वोडाफोन यूज कर रहा हूँ, तो डिफरेंट सेलुलर कंपनी ऑक्युपाई डिफरेंट स्पेक्ट्रम, एलोकेटेड स्पेक्ट्रम, और उसी बैंडविड्थ में ही उसको अपना इंफॉर्मेशन जो है सेंड करना पड़ेगा. दैट मीन्स कभी कभी देखते हो कि कोई कोई जगह पे जियो का नेटवर्क अच्छा है, एयरटेल का नेटवर्क अच्छा नहीं है. कहीं कहीं पे देखते हो एयरटेल का नेटवर्क बहुत ही बढ़िया काम कर रहा है, ठीक है, जियो का नेटवर्क नहीं है. सो दैट मीन्स एट दैट पर्टिकुलर स्पेस और दैट पर्टिकुलर प्लेस the spectrum, allocated spectrum for Jio company is not sufficient. ठीक है, वो जो बैंडविड्थ है, फ्रीक्वेंसी बैंडविड्थ, उसको उस एरिया पे वो अपना एलोकेटेड फ्रीक्वेंसी बैंडविड्थ नहीं मिल रहा है, ठीक है. उसी जगह वहीं पे स्पेक्ट्रम क्या होता है? थ्रू स्पेक्ट्रम इज द मेन मीडिया. सो इन केस ऑफ मोबाइल कम्युनिकेशन, very high capacity of the carrier signal will be transmitted through a limited spectrum allocation without any technical changes. So मेरा first point क्या है? The first point is very high capacity carrier will occupy limited allocated spectrum without any technical changes. ठीक है, टेक्निकल चेंजेस मतलब जियो सपोज यहाँ पे एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पकड़ रहा है, ठीक है, पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम को जियो ले रहा है, और
सपोज दिल्ली में या कोलकाता में जियो का स्पेक्ट्रम वही पर्टिकुलर स्पेक्ट्रम रहेगा विदाउट एनी चेंजेस, टेक्निकल चेंजेस। ठीक है, कि यहाँ पे 2G का स्पेक्ट्रम ले लिया जियो और 3G डेटा प्रोवाइड करा, तो ये पॉसिबल नहीं है। सो spectrum, since spectrum will frequency related to the frequency in case of mobile communication, and frequency is directly or indirectly affect the nature, so that's why that spectrum should be allocated by the TRAI, that is Telecom Regulation Authority of India. Without their allocation or without their particular license, no one will capture or no one will send or no one can use the particular spectrum of the particular bandwidth. ठीक है, इसीलिए देखोगे कुछ साल पहले स्पेक्ट्रम एक स्कैंडल आया था। ठीक है, तो वहां पे क्या था, एक स्पेक्ट्रम स्कैम आया था। वहां पे क्या था, जो बैंडविड्थ, हर एक बैंडविड्थ का जो खर्चा है डिपेंडिंग 2G बैंडविड्थ जो जरूरत है उससे ज्यादा खर्चा 3G का है, 3G से बहुत ज्यादा खर्चा 4G का है, 4G से बहुत ज्यादा खर्चा 5G का है। ठीक है, सो दैट इज स्पेक्ट्रम स्कैम। क्या था कि जो खर्चा गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या ट्राई एलोकेट किया था उससे काफी कम में ये लोग बैंडविड्थ खरीद लिया था। सो बैंडविड्थ खरीदने के चलते क्या हुआ था, सपोज तुम अगर बाजार से 10 रुपए में एक सामान खरीदोगे, ठीक है, तो ऑब्वियसली तुम उस चीज को 12 रुपया या 13 रुपया में बेच सकते हो। देन अगर वही सामान को अगर तुम 100 रुपया में खरीद रहे हो, दैट इज द एक्चुअल प्राइस, देन उस सामान को कभी भी तुम 11 रुपया या 12 रुपया में बेच नहीं सकते। दैट्स व्हाई आफ्टर अ सर्टेन पीरियड, देखोगे बहुत साल पहले क्या हुआ था, तो 5-6 साल पहले की बात बोल रहा हूँ, सेकेंड में तुम्हारा कॉल ड्यूरेशन होता था 1 सेकेंड 1 पैसा, 2 सेकेंड 2 पैसा, ठीक है, या 2 सेकेंड 1 पैसा। ठीक है, अभी देखो कॉल रेस्पेक्टिवली तुमको अगर फ्री कॉल करना है तो तुमको क्या करना पड़ रहा है, तुमको पर्टिकुलर एक प्लान भरना पड़ रहा है, जो 6-7 साल पहले नहीं था। क्योंकि जो स्पेक्ट्रम एलोकेशन थ्रू ट्राई, दैट इज तुम अगर 3G या 4G स्पेक्ट्रम को अवेल करते हो तो उसके लिए तुमको जो पैसा देना पड़ेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को या किसी भी देश के टेलीकॉम अथॉरिटी को, दैट अमाउंट इज वेरी हाई because that frequency will affect the nature directly or indirectly. ठीक है, so that's why the amount of the call, the plan of the mobile phones will much higher than the previous one. So that is the spectrum. Spectrum is, this is a bunch of bandwidth under which very high capacitive carrier will pass through, and the carrier has to be passed through a allocated bandwidth or allocated spectrum by the government authority or telecom authority of the particular country without any technical changes. ठीक है, so this is the concept of TRAI. Now दूसरा एक concept है, that is a very important concept in mobile communication, that is frequency reuse. Frequency reuse. Frequency reuse. So any idea by the name of the term, that is frequency reuse, क्या हो सकता है? फ्रीक्वेंसी रीयूज क्या हो सकता है, किसी को कोई आइडिया? टर्म से कुछ पता चल रहा है क्या हो सकता है फ्रीक्वेंसी रीयूज? सर एक फ्रीक्वेंसी को बार बार यूज किया जा सकता है। यूज द सेम थिंग्स ओवर अ टाइम। ठीक है, जैसे मैं एक पेन यूज कर रहा हूँ, ठीक है, एक पेन का रिफिल खत्म होने के बाद अगर मैं रिफिल को चेंज करके फिर से वो पेन को यूज कर रहा हूँ, देन दैट नोन एज रीयूज। फ्रीक्वेंसी या मोबाइल कम्युनिकेशन में भी सेम थिंग हो रहा है। मैं तुमको कॉल लगा रहा है तो वो कॉल का पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी एंगेज जब तक मैं साथ कनेक्टेड हूं। जैसे ही मैं कॉल को, कोई दूसरा यूजर जो है उस फ्रीक्वेंसी को वो या उस फ्रीक्वेंसी को यूज कर पाएगा। तो दैट्स व्हाई सेलुलर रेडियो सिस्टम और सेलुलर और मोबाइल सिस्टम totally works on the
frequency reuse, that one frequency, one frequency can be used in you. ठीक है, ये ठीक है, तो ये दूसरा यूजर आ जाता है, दैट इज यूजर टू। ठीक है, जैसे यूजर टू यूज करना छोड़ जो है यूजर को आवाज रुक रुक के आ रहा है। सर्टेन पीरियड में देखो टोटल जो वैल्यू स्पेक्ट्रम है वो खत्म हो गया, मैं और सब्सक्राइबर या यूजर बढ़ा नहीं, तो क्या हुआ, कॉन्सेप्ट यूज। ठीक है, जैसे हमारा क्लासरूम, जैसे तुम कभी सर आवाज रुक रुक के आ रहा है। ऑब्वियस हेलो, इज इट क्लियर राइट नाउ? यस सर। अभी आवाज आ रहा है ठीक से? यस सर। ओके, अगर तुम सेमेस्टर क्रॉस करके तुम ईयर में या पास आउट, तो कॉलेज क्या करेगा, वो जो पर्टिकुलर रूम विच इज एलोकेटेड फॉर अ पर्टिकुलर ईयर, वो जो पर्टिकुलर एलोकेटेड है पर्टिकुलर एक ईयर के लिए, वो रूम तो ब्लॉक नहीं करेगा। ठीक है, तो वो रूम हो जाए तुम्हारा जो उस रूम एलोकेटेड हो जाएगा कि जूनियर बैच जब फोर्थ ईयर में आएंगे तो वो तुम लोगों का प्रीवियस रूम जो तुम लोग यूज कर रहे थे फोर्थ ईयर में वो लोग यूज करेंगे। तो इसमें क्या होता है, पर्टिकुलर मेरे पास नंबर ऑफ रूम्स मेरे पास लिमिटेड है, बट इफ आई विल गोइंग थ्रू द प्रोसेस के मेरे वन टाइम यूज अगर प्रोसेस में अप्लाई कर रहा हूं, अगर फॉलो कर रहा हूं, तो क्या होगा, मुझे कितना लगेगा, जितना साल बढ़ेगा, फर्स्ट ईयर क्रॉस करने के बाद सेकंड ईयर में जब जाओगे मेरा नया रूम, तुम लोगों का हर एक साल में मेरा 4 रूम नया लगेगा। ठीक है, बट इफ आई विल यूज हर साल ये होगा, रीयूज होगा, मुझे और रूम बढ़ाने की जरूरत, मुझे और फ्रीक्वेंसी बाहर से फ्रीक्वेंसी खरीदने की जरूरत, जो एलोकेटेड है वो फ्रीक्वेंसी सेम रहेगा, बट मेरा यूजर जो है चेंज होता रहेगा। ठीक है, तो रूम विल बी चेंज, फ्रीक्वेंसी विल बी फिक्स्ड, यूजर विल बी चेंज। इसलिए देखोगे कभी कभी क्या होता है, जब तुम्हारा हाई ट्रैफिक जोन के तो कोई रिजल्ट, ऑल इंडिया रिजल्ट या इंटरनेशनल रिजल्ट, कोई रिजल्ट के जहां पे कभी कभी सर्वर ऐसा मैसेज बॉक्स में आता है या डिस्प्ले में आता है, दैट इज ये फ्रीक्वेंसी यूज कर ये को मैं डिवाइड कर दूं 1 2 3 4 5, यूजर 2, यूजर 1,
यूजर 4, यहाँ पे ये जो यूज कर रहा है ये यूजर 5, ठीक है। सो एट ए टाइम फ्रीक्वेंसी ऑफ 5 डिवीजन, यस। तो बीच बीच में पूरा आवाज ही चला जा रहा है, फिर लाइन। रुको मैं मीटिंग ज्वाइन कर, ठीक है। Just a minute. Is the screen is the screen visible, everyone? यस सर। Is the screen is visible to everyone? यस सर, स्क्रीन विजिबल है। Is the was number करके तो 6, so that is the main सर अभी भी सही से नहीं आ रहा है। Google can't reach सर the server. The सर server जूम पे ले। is busy. That is nothing but सर अभी भी बहुत रुक रहा है आवाज। सर क्या जूम पे ले सकते हैं? ठीक है। रुको मैं एक बार रिकनेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, जस्ट अ मिनट।